So today we're going to start a new chapter. Today we're going to start a new chapter. तो आप सभी हेडिंग डालिए. केमिकल बॉन्डिंग. So this is one of the this is a very large chapter and also one of the most important and theoretical chapter. इसमें बहुत सारा portion theory है. In fact, there is majority theory here. इसमें numericals तो almost next to zero ही है. And this is also a very important chapter. इसमें से बहुत सारे questions आते हैं. Start करें. Alright. Now, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आप chemical bonding में देखते हो, okay? So atoms combine to form molecules. Atoms combine. There is a lot of theory here, so you'll have to write a lot. Atoms combine together to form molecules. लिखते जाओ आप ये. To form molecules. They form bonds with each other. They यानी कि यहाँ पे atoms है. Atoms form bonds with each other. Okay. Now क्या-क्या टाइप के bonds होते हैं बताओ? क्या-क्या टाइप के bonds होते हैं? सबसे पहला is very good. सबसे पहला आपका आता है ionic bond. The first one is an ionic bond. The second is correct. The second is a covalent bond. Right. Now third बताओ. Third. Very good. The third is a metallic bond. ये मैंने expect नहीं करता आपको तो पता होगा. चलो very good. And the fourth is a coordinate. The fourth is a coordinate or also called as a dative bond. Okay. But a coordinate bond is a special case. Coordinate bond is a special case of covalent. लिख लो यहाँ तक. लिख लो फटाफट यहाँ तक. देखिए क्या कोऑर्डिनेट तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. बस यहाँ पे टाइप्स लिख रहे हैं. ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट. इतना नहीं पूछते. डन. Done. All right. So let's start with ionic. Bond. Okay. Now, in your own words, when is an ionic bond formed? In your own words, when is an ionic bond formed? Sharing of electrons or transfer of electrons. Correct. So यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या समझना है. An ionic bond is formed by the complete transfer of electrons from one atom to another. Okay, complete transfer of electrons from one atom to another. Okay, आपका कोई भी एक आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? जैसे कि अगर आपके पास Na+ हो या अगर आपके पास Na हो और Cl हो तो ये फॉर्म करता है NaCl. बट इन दिस केस एक्चुअल में होता क्या है कि आपका Na जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज करता है या Na कंप्लीटली लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन. Cl completely gains the electron. Okay, and then ये Na+ and Cl- में आपका electrostatic force of attraction होगा. Okay, Na+ is a positively charged species, Cl- is a negatively charged species,
एंड ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो Na प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन करके क्या बनाते हैं, NaCl। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कॉपी कर लो। क्या क्या, दिस चैप्टर इज लार्जर देन चैप्टर 2, यस दिस चैप्टर इज मच मच लार्जर देन चैप्टर 2। This is almost one of the largest chapters. Done? All right, let's continue. Now, what are the factors that are favorable? What are the factors that favor ionic bond? यानी कि अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो क्या क्या फैक्टर फेवरेबल होंगे। ओके, ना एक आयनिक बॉन्ड में एसेंशियली हमारे ये सारे स्टेप्स हो रहे थे। ओके, ऑल ऑफ दीज स्टेप्स शुड बी इजी, तभी जाके मेरा आयनिक बॉन्ड फेवर होगा। यस और नो, all of these steps should be easy, तभी जाके मेरा ionic bond favor होगा। Let's first look at this step. Okay, so इस step में कौन सा energy involved है बताओ। जो मैंने ये लिखा है Na gives you Na plus plus electron, ये basically कौन सा reaction है, what is this reaction called as? Correct, this is called as ionization. This is called as ionization energy or ionization potential. Okay, so to easily remove an electron, मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? करेक्ट, लो होना चाहिए। ओके, सो द फैक्टर्स व्हिच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैटायन। ओके, सेकंड, नाउ यहां पर देखो मेरा क्लोरीन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये कौन सा टर्म हुआ बताओ, या ये कौन सा रिएक्शन है? वेरी गुड, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से बताते हैं, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होता ही होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डेफिनेटली द रिलीज ऑफ एनर्जी। नाउ जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। yes or no, we have also discussed this कि lesser the energy more the stability, so electron affinity should be high or low? Correct, electron affinity should be high. So second factor मेरा क्या आएगा, high electron affinity of anion. Okay, third factor, all right, now third factor, for an ionic bond should I have a small electron negativity difference or a large electron negativity difference? Obviously a large electronegativity difference. The third factor is a large electronegativity difference, right? And fourth point, ना अभी तक तो देखो हमने ये एक चीज नहीं पढ़ा है, हमने लैटिस एनर्जी नहीं पढ़ा है। हमने लैटिस एनर्जी पढ़ लिया है क्या? आई डोंट थिंक हमने वो चीज पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। ऑलराइट, सो लैटिस एनर्जी वेरी सिंपली, ऑलराइट, सो लैटिस एनर्जी वेरी सिंपली क्या होता है, attractive force between cation and anion, as simple as that. Lattice energy is basically attractive force between cation and anion. तो ऑब्वियसली अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड चाहिए तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा? ऑब्वियसली इट शुड बी हाई। ओके, सो मेरा लैटिस एनर्जी भी क्या आ जाएगा, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी इज वेरी सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस। कॉपी कर लो। लिख लिया? कॉपी कर लो। ओके, चलो हम लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर ही लेते हैं। इट्स डिफाइन लैटिस एनर्जी।
स्टार्ट करें। ऑलराइट, सो लैटिस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड, टिपिकली लैटिस एनर्जी एक आयनिक सॉलिड का ही होता है। लैटिस एनर्जी ऑफ एन ionic solid is defined as the energy required to completely separate rather an ionic solid to completely separate an ionic solid into constituent gaseous ions। पहले आप ही लिख लो। और it is the energy released when gaseous ions bond together to form 1 mole of ionic solid। लिख लिया? रुक जाओ, पहले यहाँ तक लिख लिया आप सभी ने? ओके, नाउ फर्स्ट डेफिनेशन अगर मैं एक बार पढ़ के आपको बताऊं, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड to completely separate an ionic solid into constituent gaseous ions, to completely separate an ionic solid into constituent gaseous ions। यानी कि अगर मैं एक ionic solid लूं, okay, that is NaCl solid, okay, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? आई एम सेपरेटिंग दिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे आयंस कौन कौन से होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे आयंस कौन कौन से होंगे? करेक्ट, एक Na+ होगा एंड दूसरा Cl- होगा, राइट? सो आई एम सेपरेटिंग दिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ओके, इस रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा, ओके, इस रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा, दैट इज बेसिकली योर लैटिस एनर्जी। ओके, एज पर द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। यानी कि या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर गैसियस आयंस बॉन्ड टुगेदर, ओके, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। ओके, ये भी आपका लैटिस एनर्जी होता है। तो चाहे आप रिएक्शन को ऐसे लिखो, चाहे आप रिएक्शन को ऐसे लिखो, दोनों का ही मतलब लैटिस एनर्जी ही होता है। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। ओके, ये सब चीज की आप चिंता मत करो, अंडरस्टैंड कि अच्छा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं। ओके, समझ में आया सभी को? कॉपी कर लो। तो आपको चाहे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड दे या फिर आप एक आयनिक कंपाउंड को गैसियस साइंस में ब्रेक कर रहे हो, दोनों ही लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व करता है। ओके, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया? ऑलराइट, सो continuing in lattice energy, what are the factors affecting लैटिस एनर्जी? ओके, देखो बहुत सिंपल सा है। नाउ लैटिस एनर्जी में हो क्या रहा है, इफेक्टिवली एक कैटायन एक एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए
जो आपका इक्वेशन है क्या है बताओ, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, उसका हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ। F इज इक्वल टू, करेक्ट, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये सुनो, ठीक है, यही है हमारा इक्वेशन। नाउ अज्यूम दैट दिस इज फॉर कैटायन, अज्यूम दैट दिस इज फॉर एनायन, ओके। तो ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी के लिए मेरा फर्स्ट फैक्टर क्या होगा बताओ, अब आप ऑलरेडी समझ गए, फर्स्ट फैक्टर वुड बी, फर्स्ट फैक्टर वुड बी चार्ज, yes or no, the first factor would be charge, very good, the first factor would be charge. Now अगर चार्ज इंक्रीज करता है, ओके, तो मेरा लैटिस एनर्जी क्या करेगा बताओ, वेरी गुड, लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीजेस बिकॉज लैटिस एनर्जी इज इफेक्टिवली द अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। सो इफ चार्ज इंक्रीजेस, चाहे वो कैटायन का चार्ज इंक्रीज करे, चाहे वो एनायन का चार्ज इंक्रीज करे, ओके, किसी का भी चार्ज इंक्रीज करे, तो लैटिस एनर्जी तो इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स विल ऑब्वियसली इंक्रीज, ऐसा नो। एंड अब आप सेकंड फैक्टर भी समझ गए हो, पहला फैक्टर अगर चार्ज है तो सेकंड फैक्टर क्या है बताओ, करेक्ट, द सेकंड फैक्टर इज साइज। ना ऑब्वियसली बताओ, लैटिस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए साइज को क्या करना पड़ेगा बताओ, करेक्ट, साइज को करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत डिफिकल्ट था क्या? कॉपी कर लो। डन। कॉपी कर लिया सभी ने। ना हाउ डू यू कंपेयर लैटिस एनर्जी, ऑलराइट, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, सपोज करो कि आपके पास है NaCl एंड KCl, ओके, हमें यहाँ पे लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर लैटिस एनर्जी, ओके। सो इन दिस केस देखो, हम कंपैरिजन हमेशा कैसे करते हैं, जो पार्ट कॉमन है उसको आप हटा दो, ओके। NaCl KCl, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन क्या है बताओ, करेक्ट, Cl पार्ट कॉमन है, तो आप Cl पार्ट को हटा दो, ओके। सो अगर मैं Cl पार्ट को हटा दूं, रिमूविंग कॉमन पार्ट, ये चीज आप नोट करो, ओके, रिमूविंग कॉमन पार्ट, क्योंकि जो जो फैक्टर कॉमन है वो तो सब में होगा। सो अगर मैं कॉमन पार्ट का हटा दूं, तो मेरे पास यहाँ पे है Na प्लस, यहाँ पे है K प्लस, ऑलराइट। नाउ मेरे पास दो ही फैक्टर्स है, एक तो चार्ज एक तो साइज। तो अगर मैं चार्ज देखूं, तो चार्ज तो ऑब्वियसली दोनों में सेम है, ऐसा ना, चार्ज तो ऑब्वियसली दोनों में सेम है, सो चार्ज मैं यूज नहीं कर सकता टू डिटरमाइन। नेक्स्ट में देखूंगा साइज, ऑब्वियसली बिटवीन Na प्लस एंड K प्लस, साइज किसका स्मॉलर है, करेक्ट, इसका साइज जो है वो स्मॉलर है एंड इसका साइज जो है वो लार्जर है। अब हमारा आंसर आ गया, ओके, कि आपका लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बताओ बिटवीन NaCl एंड KCl किसका लैटिस एनर्जी हाइयर आएगा, करेक्ट, तो मेरा NaCl का लैटिस एनर्जी वुड बी हायर देन KCl। इसका रीजनिंग क्या आएगा, इसका रीजनिंग आएगा Na इज स्मॉलर देन K। देखो समझ में आया क्या, विल टेक वन मोर एग्जांपल, बट ये वाला समझ में आया क्या, कॉपी कर लो। ओके, लेट्स टेक वन मोर, अब ये वाला आप मुझे बताओ। अच्छा, मैं इसमें आपको, एनायन तो सेम ही है ना, एनायन तो सेम ही है, जो चीज कॉमन है उसको आप हटा दो, ऑलराइट। नाउ ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल, मे बी यू हैव NaCl एंड MgCl2, ओके। ना अगेन यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव वॉट एवर इज कॉमन, ओके। ना कई बार लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि अच्छा यहाँ पर तो एक Cl है बट यहाँ पे दो Cl है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। चाहे कितने भी टाइम्स हो, जो पार्ट कॉमन है उसको आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे Cl कॉमन है, तो आप यहाँ से एक Cl एंड यहाँ से दो Cl आप डायरेक्टली हटा सकते हो, ओके, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो ये वाला आप ट्राई करो, रिमूव कॉमन। अगर मैं यहाँ पे कॉमन पार्ट हटा दूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, Na प्लस बचेगा,
एंड यहाँ पे क्या आएगा Mg2 प्लस बचेगा। ओके, सो ऑब्वियसली सम पीपल में आस्क कि अच्छा सर यहाँ पर तो एक Cl था बट यहाँ पे दो Cl है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जो भी कॉमन है डायरेक्टली हटा सकते हो। वॉइस ब्रेक, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ वॉइस ब्रेक। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ना तो नहीं चाहिए। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट लेट्स लुक एट चार्ज। ओके, सो अगर मैं चार्ज देखूं तो ऑब्वियसली चार्ज किसका ज्यादा आ रहा है? करेक्ट, Mg2 प्लस का ज्यादा आ रहा है, इसका लैटिस एनर्जी हाइयर आ रहा है एज पर चार्ज। ओके, एंड अगर मैं साइज देखूं तो साइज के हिसाब से भी मेरा Mg2 प्लस का ही लैटिस एनर्जी ज्यादा आ रहा है। यस और नो? Mg2 प्लस हैज ग्रेटर चार्ज एंड Mg2 प्लस हैज स्मॉलर साइज। तो चाहे मैं चार्ज देखूं चाहे मैं साइज देखूं, दोनों ही से MgCl2 ग्रेटर आ रहा है, राइट? सो वेरी सिंपली MgCl2 will have greater lattice energy than NaCl। okay, इसका रीजनिंग जो है वो size as well as charge। is that clear? is that clear? right now sometimes हो सकता है कि कुछ भी कॉमन नहीं हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए NaCl एंड मे बी MgO। ओके, तो समटाइम्स नथिंग मे बी कॉमन, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम पहले कैटायंस को अलग ट्रीट करेंगे, एनायंस को अलग ट्रीट करेंगे। ओके, सो अगर मैं सिर्फ कैटायन कैटायन पहले कंपेयर करूं, दैट इज अगर मैं पहले Na प्लस एंड Mg2 प्लस कंपेयर करूं, तो नेचुरली किसके लैटिस एनर्जी ज्यादा आएंगे बताओ? Na प्लस या Mg2 प्लस? करेक्ट। सो अगर मैं पहले Na प्लस एंड Mg2 प्लस को देखूं खाली, तो Mg2 प्लस का ज्यादा आएगा। ये सुनो, ओके, ऑब्वियसली सेम फैक्टर साइज एज वेल एज चार्ज। ओके, अब कैटायन कैटायन का फैक्टर खत्म, अब मैं एनायन एनायन का फैक्टर चेक करूंगा। ओके, सो आई हैव Cl माइनस एंड आई हैव O2 माइनस। ओके, आई हैव Cl माइनस एंड आई हैव O2 माइनस। देखो साइज तो आपको ऑलरेडी पता ही है, हमने पीरियोडिक टेबल में साइज तो डिस्कस किया ही था, ऐसा ना? ओके, सो पहले देखो हम पहले कैटायंस को कंपेयर करेंगे। So I have Na plus and I have Mg2 plus. Obviously इस चीज का lattice energy will be greater. Why? Because charge is greater and size is smaller. Alright? And फिर देखो अगर मैं anion anion को कंपेयर करूं, यहाँ पे है Cl माइनस, यहाँ पे है O2 माइनस। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इसका लैटिस एनर्जी वुड बी ग्रेटर। वाई? बिकॉज ऑफ चार्ज, यहाँ पे 2 माइनस है, राइट? एंड ऑब्वियसली इसका साइज भी स्मॉलर होगा। ये सुनो, ओके, सो अब देखो यानी कि कैटाइन से भी क्या हाउ, क्या साइज? आपको आप भूल गए क्या? ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है बट फ्लोरीन थर्ड पीरियड में है। ऑक्सीजन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन के नीचे क्लोराइड। यू कैन नॉट फॉरगेट दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके, ध्यान दो। सो कैटाइन से भी मेरा Mg2 प्लस फेवर्ड है, ओके, एंड एनायन से भी मेरा ऑक्सीजन फेवर्ड है। तो यानी कि ओवरऑल क्या आ गया? अब ऑब्वियसली किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? MgO का लैटिस एनर्जी वुड बी ग्रेटर देन NaCl। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैटायन कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड फेवर कर रहा है, एनायन जो है वो दूसरा कंपाउंड फेवर कर रहा है। दिस इज ऑब्वियसली पॉसिबल, बट देन वैसे केस में आपको ऑप्शंस ही वैसे देगा कि आप उसका आंसर इजीली निकाल सको। ओके, टिपिकली आपको सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ही देगा जिसका कि आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। नहीं भी होगा तो आपके पास ऑप्शन अच्छे होंगे। इज दैट क्लियर? नोट कर लो। डन। ऑलराइट, लेट्स टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। सेम चीज, ठीक है, आप खुद से ट्राई करो, सेम चीज खुद से ट्राई करो। आपको लैटिस एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है, राइट? लैटिस एनर्जी के हिसाब से, सो यू हैव Na2O, NaF, let's say you have NaCl, Na2S, let's say you have Na2O, MgO, Al2O3। इतना काफी है, ट्राई करो, ट्राई करो। लैटिस एनर्जी आपको हर केस में निकालना है।
हो गया, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट या सेकंड किसका ज्यादा आएगा बताओ, फर्स्ट या सेकंड किसका ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट का ज्यादा आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली फर्स्ट का ज्यादा आएगा। ओके, नाउ यहाँ पर देखो देयर कैन बी अ पर्टिकुलरली कंफ्यूजिंग फैक्टर। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एक फैक्टर कंफ्यूजिंग था, यहाँ पे Na अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे O2 माइनस एंड यहाँ पे F माइनस। ओके, आई हैव टू कंपेयर बिटवीन O2 माइनस एंड आई हैव टू कंपेयर बिटवीन F माइनस। ओके, सो अगर मैं चार्ज में देखूं तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगा, लेकिन अगर मैं साइज में देखूं तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी चार्ज और साइज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके, अगर कभी भी चार्ज और साइज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इन केस ऑफ लैटिस एनर्जी, सो चार्ज विल बी आवर डोमिनेंट फैक्टर। ओके, चार्ज विल बी आवर डोमिनेंट फैक्टर। ये चीज आप नोट कर लो कि लैटिस एनर्जी में अगर चार्ज एंड साइज आर ऑपोजिट, आर ऑपोजिंग, are opposing, okay, then charge dominates. ओके, सो मेरा यहाँ पे Na2O ज्यादा आ गया। नेक्स्ट वाला तो देखो, नेक्स्ट वाला तो ऑब्वियस होना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो, आपके पास है Cl माइनस S2 माइनस, चार्ज के हिसाब से ये, ओके, एंड साइज के हिसाब से वैसे तो ये करना चाहिए। ओके, साइज के हिसाब से वैसे तो ये करना चाहिए, बट डोमिनेंट फैक्टर क्या है? डोमिनेंट फैक्टर मेरा चार्ज है, यानी कि यहीं पर ही वापस आ जाएगा। ठीक है, चेक करो। ओके, लास्ट वाला शुड बी वेरी ऑब्वियस, लास्ट वाला तो ये आएगा। Is that clear to everyone? क्वेश्चन यहाँ पे था अरेंज एज पर लैटिस एनर्जी, अरेंज एज पर लैटिस एनर्जी। कंप्लीट हो गया सभी का? Some more, we'll practice many more questions, इस चीज के अभी चिंता मत करो, we have to proceed with the chapter. देख लिया? Alright. Now, so how do we calculate lattice energy? So lattice energy का calculation हम कैसे करते हैं? Lattice energy is calculated with the help of Born-Haber cycle. With the help of Born-Haber cycle. Now, Born-Haber cycle is basically an extension of Hess law. Born-Haber cycle तो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट Hess law हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस आप इस चीज को लिख लो, बट जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो आपको ये चीज बहुत ही ऑब्वियस लगेगा, राइट? सो राइट नाउ जस्ट मेंशन दैट LE इज कैलकुलेटेड by using Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is basically a part of Hess law. अभी बस आप जैसा मैंने लिखा है वैसा आप लिख लो, राइट? Now, Born-Haber cycle या Born-Haber cycle होता क्या है? सेम चीज जैसे कि मैंने Na को रिएक्ट करवाया विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। ओके, मुझे यहाँ पे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है, यानी कि आई हैव टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। तो अगर मुझे NaCl फॉर्म करना है तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे? ऑब्वियसली Na होंगे एंड Cl होंगे, यस और नो? ओके, नाउ यहाँ पर देखो बॉर्न-हेबर साइकिल होता क्या है, या व्हाट ऑल आर दी स्टेप्स दैट आर यूज्ड टू फाइनली फॉर्म अ कंपाउंड। देखो ध्यान दो, नाउ Na, ओके, Na किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? Na किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ओए, सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सोडियम ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? यस, HESS, हेस लॉ। क्लोरीन ऑब्वियसली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा क्लोरीन जो है वो तो Cl2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यस और नो? यस और नो? ओके, इसके अलावा NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? करेक्ट, NaCl हमारा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो वी हैव टू गो फ्रॉम हियर अप टू हियर। ओके, ऑब्वियसली बीच में काफी सारे स्टेप्स होंगे, यस और नो?
बीच में काफी सारे स्टेप्स, यानी कि आपको ऑलरेडी पता है मुझे Na को Na+ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, क्लोरीन को Cl- में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा Na+ एंड Cl- कंबाइन होके मुझे NaCl देगा। यस और नो? ओके, नाउ ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से देखो। सबसे पहले लेट्स से कि मैं यहाँ पे Na+ को पहले देख रहा हूँ, राइट। सो अगर इस Na को सॉलिड से अगर मैं Na गैस में कन्वर्ट हो रहा हूँ, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे बताओ? करेक्ट। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली योर सब्लिमेशन। यस और नो? सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, नाउ कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सो अब अगर इस Na+ गैस को मैं Na+ में कन्वर्ट करूं गैस फॉर्म, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बताओ? करेक्ट, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओके, और आयोनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके ना, अब देखो तो मुझे सिमिलरली जो यहाँ पे Na+ है, मुझे उसी तरह से यहाँ पे एक Cl- भी चाहिए होगा। ये सर, Cl- मेरा कहाँ से आया होगा? Cl- मेरा Cl गैस से आया होगा। ओके, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, या इस एनर्जी चेंज को हम क्या बोलते हैं? हाँ, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, एंड ये Cl2 को जो मैंने Cl गैस में कन्वर्ट किया होगा, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ओके, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl का जो बॉन्ड है उसको मैंने ब्रेक किया टू फॉर्म Cl ओनली। ओके, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मॉलिक्यूल था, बट यहाँ पे एटम था, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। जब आप हाइड्रोजन को डिसोसिएट करोगे तो ये आपको ऑब्वियसली क्या देगा? H देगा। ये सुनो, ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि हमने Cl2 को डिसोसिएट किया है टू गिव यू Cl एटम। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ध्यान दो, ध्यान दो। सो अच्छा, चलो हम इसी इसी पार्ट में लिख लेते हैं ना। देखो, अगर मैं H2 को डिसोसिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2H मिलेगा। ओके, तो लेकिन यहाँ पर तो मुझे सिर्फ एक Cl चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ डिसोसिएशन फॉलो किया है। यस और नो? ओके, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तभी तो जाके मुझे एक एटम मिलेगा। तो यहाँ पे इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कंप्लीट डिसोसिएशन, इट इज हाफ ऑफ द डिसोसिएशन। ओके, अब देखो फाइनली जब Na+ एंड Cl- कंबाइन करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा बताओ? या दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज, correct, this energy is called as lattice energy. So this entire thing is called as our Born-Haber cycle. कंप्लीट कर लो पहले इस चीज को। कंप्लीट कर लो। ओके, हम सफिशिएंटली स्लो स्लो जा रहे हैं ना, वी आर नॉट गोइंग टू फास्ट। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। एक्सप्लेन इट अगेन। देखो, अभी आपको जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा, नॉट एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली एक के बाद एक, ऑब्वियसली जब तक आपका Na गैस फॉर्म नहीं होगा तब तक आपका आयोनाइजेशन भी कैसे होगा। ओके, सो वी आर गोइंग सफिशिएंटली स्लो स्लो, देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ देखो, इट्स वेरी सिंपल। नाउ अब देखो, अगर मैं डेल्टा अब देखो अगर मैं डेल्टा H ओवरऑल लिखूं, ध्यान दो। ओके, अब अगर मैं डेल्टा H ओवरऑल लिखूं तो बेसिकली आई हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज एनर्जीज। यस और नो? आई हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज एनर्जीज। सो क्या आ जाएगा? देखो, वेरी सिंपली, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन, ओके, प्लस डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? प्लस डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेल्टा H वर्जन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ओके, प्लस डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया? ये पार्ट सभी को समझ में आया? राइट, सो हाउ अबाउट यू ट्राई वन। ओके, आप लोग एक खुद से ट्राई करो। ये सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? दिस इज आवर बेसिकली बॉर्न-हेबर साइकिल। ये पार्ट आप सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? ऑलराइट, सो हाउ अबाउट, अच्छा कंप्लीट करो। सो कंप्लीट करते करते आप लोग ये वाला ट्राई करो। वी आर ट्राइंग टू फॉर्म
NaBr solid. Okay, NaBr solid. Now NaBr का obviously component क्या क्या है? एक Na है and दूसरा क्या है? Br है. Alright. Now Na किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? Na एग्जिस्ट एज Na solid. Br किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? Now Br exists as Br2 and liquid. Alright. अब आप मेथड समझ गए हो, अब आप इसको कंप्लीट करो. ओके, अब आप मेथड समझ गए हो, ये वाला आप ट्राई करो पूरा. हो गया क्या? हो गया. देखो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. देखो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो Na पार्ट तो बहुत ही ऑब्वियस है. ओके, Na पार्ट को पहले आप Na गैस में कन्वर्ट करोगे, देन आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू Na प्लस गैस. दिस इज ऑब्वियसली सब्लिमेशन एंड दिस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ओके, नाउ Br2, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे हाफ ऑफ Br2 चाहिए होगा. यहाँ पे मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ. ओके, यहाँ पे एक हाफ आप ऐड कर दो. सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे हाफ ऑफ ब्रोमीन चाहिए होगा. सो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में है तो पहले मैं इसको गैस फॉर्म में भेजूंगा. सो Br2 हाफ इन गैस फॉर्म. ये कौन सा ये कौन सा रिएक्शन हुआ बताओ, या इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? करेक्ट, यू कैन कॉल दिस एज बॉइलिंग और यू कैन कॉल दिस एज वेपराइजेशन. इवेपोरेशन तो स्लो प्रोसेस होता है, बट वी कैन कॉल दिस एज वेपराइजेशन. यस और नो? इवेपोरेशन इज नेचुरल. इवेपोरेशन अपने आप होता है, वेपराइजेशन हम करते हैं. राइट, सो ये क्या हुआ? वेपराइजेशन हुआ. अब इसके बाद बताओ फिर मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट इज बेसिकली योर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 2. ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली आवर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 2. सो ये देखो, ये मेरा क्या आ जाएगा? दिस इज Br गैस. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और बड़ा वाला एरो बनाता हूँ. ओके, बड़ा वाला एरो बनाता हूँ. तो ये मेरा क्या गया? ये मेरा Na प्लस आ गया. दिस इज Br गैस एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिविंग मी Br माइनस. अब आप इन दोनों को कनेक्ट करो तो ये मेरा क्या आ जाएगा? लैटिस एनर्जी. देखो, चेक करो. इज दैट क्लियर? राइट, सो इसमें एंड पिछले वाले में सिर्फ एक डिफरेंस क्या आएगा? सिर्फ आपका एक एडिशनल हाफ ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड सपोज करो कि आपको इसी रिएक्शन का, राइट, सपोज करो कि आपको इसी रिएक्शन का लैटिस एनर्जी निकालना है. ओके, मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ. so आपका आंसर हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी आ जाए. आई एम गिविंग यू रैंडम वैल्यूज हियर. लेट्स से कि आपको गिवन है, लेट्स से कि आपको गिवन है सब्लिमेशन फॉर सोडियम. मैं सारे के सारे 1 मोल के रेस्पेक्ट में बोला. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज 10 किलो जूल पर मोल. ओके, ionization potential of Na is let's say 15 kilojoule, is let's say 15 kilojoule per mole. Again I'm giving random values. All right, vaporization of Br2 is equal to let's say 25 kilojoule per mole. This is vaporization. All right, इसके अलावा let's say dissociation of Br2 is equal to let's say 12 kilojoule per mole. और क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेट्स से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या वैल्यू चाहिए बताओ? वी कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू. क्या चाहिए? 5. थोड़ा ऑड वैल्यू हो जाएगा, चलो 5 लेते हैं. इज 5 किलो जूल पर मोल. ओके, एंड डेल्टा एच ओवरऑल, और तो कुछ हमें वैल्यू नहीं चाहिए, सारे वैल्यूज मैंने दे दिए. ओके, डेल्टा एच ओवरऑल इज क्या वैल्यू चाहिए बताओ? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल क्या ले बताओ?
-20 ले लेते हैं। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल -20, मैंने बहुत ही रैंडमली यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, राइट। नाउ इससे पहले कि आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो, ओके, इससे पहले कि आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो, जस्ट गिव यू वन हेड्स अप। आपको मेंटली यहाँ पे समझना है कि कहाँ पे एनर्जी इन होगा, कहाँ पे एनर्जी आउट होगा, ओके। उसके हिसाब से आप वहां पे एनर्जी का वैल्यू लिखें। इज दैट क्लियर? आप यहाँ पे सोच समझ के करना कि अच्छा कहाँ पे एनर्जी इन होगा, कहाँ पे एनर्जी आउट होगा, ओके। अब आप सॉल्व करो इसको। जहां पर भी एनर्जी इन होगा वो एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, जहां पर एनर्जी आउट होगा वहां पे आप नेगेटिव साइन करें। क्या आंसर आया? देखो, इन दिस केस, ओके, आई हैव एन आंसर -58.5। चलो ठीक है, इसको चेक करेंगे। नाउ यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरा डेल्टा एच क्या आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन माइनस, ओके, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। या तो फिर ऑब्वियसली आप डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख सकते हो, बट मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया, ओके, एक ही बात है। एंड प्लस लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू, ये ओवरऑल आ गया, ठीक है। मेरे लैटिस एनर्जी अभी नहीं पता कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो मैंने इसको एज इट इज लैटिस एनर्जी ही लिख दिया। देखो ये पार्ट समझ में आया क्या? ओके, ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू ओवरऑल। बस अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो। सो -20 is equal to sublimation 10, ionization 15, half of vaporization that is 12.5, half of dissociation that is 6, minus electron affinity मैंने दिया है 5, okay, electron affinity मैंने minus क्यों किया? Is that clear to everyone? okay, plus यहाँ पे मैंने डाल दिया lattice energy, alright। अब देखो, अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। सो दिस इज बेसिकली 10 10 20 20 32.5 32.5 एंड 6 38.5 38.5 इस साइड जाएगा, करेक्ट। लैटिस एनर्जी इज -58.5। देखो चेक करो। अब आपको समझ में आया कि हम लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली योर बॉर्न हेबर साइकिल। कंप्लीट कर लो। डन। डन। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। Now, अब देखो, so this was all about ionic bonds and lattice energy and Hess law। फिर उसके आगे देखो, what are some general characteristics? What are some general characteristics? Electron affinity was negative because energy out होता है, इसीलिए electron affinity was negative। General characteristics of ionic compounds, okay। Now general characteristics is basically typically उसका physical state, okay। एक ionic compound typically कौन से state में होगा बताओ? solid, liquid या gas? Obviously it will generally be in solid, okay। Second point, उसका melting point and boiling point, okay।
बताओ टिपिकली एक आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा या हाई होगा? Obviously they will have high melting and boiling points. Why? Because there is strong intermolecular force of attraction. Yes or no? Ionic bonds जो है काफी strong होते हैं, which is why they have high melting point and they have high boiling point. All right. The third part would be conductance. Okay. The third part would be conductance. बताओ, are they good conductors of heat or bad conductors of heat? Correct. They are good conductors of heat. They are good conductors of heat. What about electricity? Good conductors of heat? Yeah, good conductors of electricity? Yeah, bad conductors of electricity. They are bad conductors of electricity. They are bad conductors of electricity in solid state. They are bad conductors of electricity in solid state, but they are good conductors in, correct, but they are good conductors in molten. Okay, they are good conductors in molten. Molten का हम एक और वर्ड यूज करते हैं, बताओ? molten और fused, ठीक है, और in aqueous state. Okay, कॉपी कर लो. So this is somewhere where a lot of people make mistakes. कि solid state में ionic compounds are not good conductors, but molten state में या fused state में they are good conductors. Clear? Right. The next point is crystal structure. ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे. Third point is conductance. Third point is conductance. Okay. Fourth point is crystalline structure. ये पर्टिकुलर पार्ट हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, which is a chapter in your 12th. Okay, but अभी के लिए बस आप इतना लिख लो, they have fixed crystal structure. इसका मतलब क्या था ये हम आगे देखेंगे, ये हम 12th में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप इसको नोट कर लो. They have fixed crystal structure. वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? Is the voice breaking for everyone? वॉइस ब्रेक हो रहा है? Yes, I can see internet connection is unstable. ठीक है, पॉइंट्स तो आप लिखते जाओ, पॉइंट्स तो आपको दिख ही रहे हैं. Fifth is brittleness. Okay, ionic compounds are, बताओ क्या आएगा? Brittle, malleable, ductile, क्या आएगा बताओ? Salt brittle आएगा या malleable आएगा या ductile आएगा बताओ? Obviously brittle आएगा. Okay, obviously they'll be brittle. Next is solubility. बताओ, ionic compounds are soluble in, correct? So they are highly soluble. They are highly soluble in polar solvents. In polar solvents such as water, and not soluble in non-polar solvents. Obviously polar non-polar हमने अभी तक कवर नहीं किया है, वो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे. And not soluble in non-polar solvents. Okay, आप यहीं पर ही एक लाइन लिख लो, like dissolves like. Okay, इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इसको लिख लो. Okay, and इसी में आप एक और पॉइंट लिख लो, any compound is highly soluble. Any compound is soluble. Any compound is soluble when hydration energy is greater than lattice energy. Again इस चीज का एग्जांपल हम आगे देखेंगे, अभी के लिए बस आप इसको नोट कर लो. Any compound is soluble when hydration energy is greater than lattice energy. Done?
ऑलराइट, सेवेंथ इज, बस आप ये चीज लिख लो, दे शो आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म तो कहते हैं, दे शो आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, क्या होता है ये हम अगेन 12th में आपका चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस पर नोट, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, अभी के लिए बस आप इस पर नोट। लिख लिया? ओके, आई वांटेड टू स्टार्ट कोवलेंट कंपाउंड बट वो तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम आयनिक कंपाउंड्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां तक आप सभी ने लिख लिया? ऑलराइट, नाउ सो कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है, आप इसी के नीचे हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सॉल्युबिलिटी। नाउ अगेन जैसा कि हमने लिखा कि कोई भी कंपाउंड तभी सॉल्युबल होता है, अ कंपाउंड इज सॉल्युबल व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ओके, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है तो आपका कंपाउंड टिपिकली सॉल्युबल आता है। ओके, नाउ देखो, अब हम हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी को क्वालिटेटिवली कैसे समझते हैं। क्वालिटेटिवली का मतलब हमें नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता है, बट हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये चीज ज्यादा सॉल्युबल आएगा, सॉरी ये चीज सॉल्युबल आएगा या नहीं आएगा। ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम रूल्स। तो पहले आप कुछ रूल्स लिख लो, ये रूल्स जो है आपको याद रखने के लिए काफी इजी कर देते हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी के लिए देयर आर सम रूल्स। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। Alright, so the first rule is that all compounds of sodium, potassium, ammonium, nitrate and acetate are completely soluble. Okay, all compounds of sodium, potassium, ammonium, nitrate and acetate are completely soluble in water. कॉपी करते जाओ। कॉपी कर लिया? Can all of you hear me? All right, कॉपी कर लिया? Acetate CH3COO minus, CH3COO minus are completely soluble in water. Okay, second rule, all chlorides are generally soluble in water. All chlorides are generally soluble in water. Okay, but इसके कुछ exceptions होते हैं। क्या क्या exception है बताओ, ये आपको पता होगा। क्या क्या exception है बताओ। इनफैक्ट चलो मैं इसको चलो ऐसे लिख देता ना, ऑल, इसके एक्सेप्शंस आपके होते हैं, इसके एक्सेप्शंस होते हैं। ओके, इसके एक्सेप्शन होते हैं आपका लेड, ओके, मर्क्यूरी एंड एजी। ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड तो डेफिनेटली इनसॉल्युबल होगा, यस और नो? ओके, टिपिकली ये एक्चुअली ऑल हैलाइड्स होता है, इसको आप चेंज कर लो। All chlorides, bromides and iodides are generally soluble in water with the exceptions of lead, mercury and silver. लिख लिया?
सिल्वर क्लोराइड तो आपने पढ़ा ही है, सिल्वर क्लोराइड इज अ वेरी कॉमन प्रेसिपिटेट, ये तो आपने 1000 बार पढ़ा है। सिल्वर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये तो आपने कई बार पढ़ा है। yes or no? Okay, now third, most salts most salts of silver are insoluble लेकिन अब आप देख के बताओ यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आएगा। ओके, सिल्वर के ज्यादातर सॉल्ट्स तो इनसॉल्युबल है, लेकिन एक्सेप्शन क्या आएगा बताओ। फर्स्ट रूल को मुझे देख के बताओ क्या एक्सेप्शन आएगा। करेक्ट। सो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर ये कंपोनेंट है ना तो वो सॉल्युबल है ही है। तो अगर मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है तो वो सॉल्युबल होगा, अगर मेरे पास सिल्वर एसिटेट है तो वो चीज सॉल्युबल होगा। इज दैट क्लियर? इसलिए ये रूल जो है वो टॉप पे है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राइट। सो मोस्ट सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर आर इनसॉल्युबल। ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट एक्सेप्शन आ जाएगा, सिल्वर एसिटेट एक्सेप्शन आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लो। इसके अलावा मोस्ट सल्फेट्स are soluble. Okay, however group 2 sulfates solubility decreases down the group. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं BeSO4 लू एंड अगर मैं BaSO4 लू, ओके, इनसॉल्युबल कौन सा आएगा बताओ? करेक्ट। सो BaSO4 जो है वो आपका इनसॉल्युबल आएगा। ओके, ग्रुप 2 का आपको याद रखना है, ग्रुप 2 का सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल। ओके, फॉर एग्जांपल, या चलो आप डायरेक्टली लिखो ना, यहाँ पे इनसॉल्युबल कौन कौन से है? आपका CaSO4, ओके, Ca के बाद आपका आता है SrSO4, इसके बाद आपका आता है BaSO4। नोट करते जाओ। लिख लिया? किसमें एक्सेप्शन? मोस्ट सल्फेट्स में आपका टिपिकल एक्सेप्शन आपका ग्रुप 2 में ही आता है। सल्फेट्स में टिपिकली योर एक्सेप्शन इज इन ग्रुप 2। ओके, फिफ्थ पॉइंट most hydroxides are slightly soluble. ओके, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या समझना है कि कौन से हाइड्रोक्साइड्स हाईली सॉल्युबल होंगे बताओ। विच हाइड्रोक्साइड्स वुड बी हाईली सॉल्युबल? करेक्ट, ऑल एल्किली हाइड्रोक्साइड्स वुड बी हाईली सॉल्युबल। आपका NaOH KOH ग्रुप 1 के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है वो हाईली सॉल्युबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रुप 1 G1 इज ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स हाईली सॉल्युबल। ओके, उसके अलावा देखो ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स स्लाइटली सॉल्युबल। ओके, एंड देन उसके अलावा आपका आता है अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, आयरन हाइड्रोक्साइड, ओके, एक्सेट्रा। दीज आर इनसॉल्युबल। लिख लिया? नेक्स्ट इज most carbonates are insoluble. ऑब्वियसली अब आप समझ सकते हो एक्सेप्शन क्या आएगा। मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, बट आपका एक्सेप्शन जैसे क्या आ जाएगा बताओ। करेक्ट, ऑब्वियसली द एक्सेप्शन वुड बी आपका ग्रुप 1 का कार्बोनेट्स। ओके, ग्रुप 1 का कार्बोनेट्स जो है वो सॉल्युबल आ जाएगा,
बट आपका उसके अलावा बाकी कार्बोनेट्स जो है वो टिपिकली इनसॉल्युबल ही होते हैं. इज दैट क्लियर? Obviously NH4OH would be highly soluble. NH4OH would be highly soluble. Okay. Most carbonates group 2 का insoluble. Yes, group 2 का insoluble आता है. मैं एक और रूल लिखवाऊंगा उसमें मैं ये चीज समझाऊंगा. Group 2 का insoluble. Yes. Right. Next is chromates. Chromates are generally insoluble. Exception देखो, group 1 is most important. ये हमेशा follow होगा, फिर ये follow होगा, फिर ये follow होगा. आपको ऐसे समझना है. Okay. Chromates are generally insoluble. Okay. Phosphates are generally insoluble. Okay. Number 9, fluorides are generally insoluble. नोट कर लिया? ओके. बट ऑब्वियसली इसका एक एक्सेप्शन आता है, इसका एक कॉमन एक्सेप्शन है, AgF. AgF इज सॉल्युबल. नोट कर लो. AgF is a very common exception. This is soluble. लिख लिया? लिख लिया ना. अब इसके अलावा जो मैं लिखवा रहा हूँ वो रूल तो नहीं है, वो ट्रिक है. ओके. रूल तो नहीं है बट वो ट्रिक है. ओके. बेसिक ट्रिक आपका क्या है कि फॉर ग्रुप 2 क्रोमेट, ये CHROMATE क्रोमेट. क्रोमेट आपका होता है CrO4. क्रोमेट आपका होता है CrO4 2-. ओके. दिस इज बेसिकली अ क्रोमेट. नाउ यहाँ पे देखो आपको क्या ट्रिक ध्यान में रखना है. फॉर ग्रुप 2 solubility of large anions. Solubility of large anions यानी कि आपका हो गया कार्बोनेट, okay, iodide and sulfate. Okay. For these, solubility down the group decreases. Solubility down the group decreases. Okay. And typically ये सारे insoluble ही होते हैं. कहने का मतलब, okay, if I take for example calcium iodide and if I take for example barium iodide, okay, कौन सा insoluble होगा between calcium iodide and barium iodide? Correct. Barium iodide आपका insoluble होगा. Okay. For group 2, solubility of large anions, carbonate, iodide and sulfate decreases on the group. This is a very common one. ये काफी commonly जिस question में आता ही आता है. Okay. This is trick number 1. Okay. Trick number 2 is, if there is large size difference, between cation and anion, it is generally soluble. पहले आप ये चीज लिख लो. ठीक है. ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन दे दिया जाए, मे बी आपको दे दिया जाए BeSO4. ओके. मे बी आपको BeSO4 दे दिया जाए. नाउ ऑब्वियसली SO4 2- इज अ लार्ज एनायन, बट Be क्या है? Be तो बहुत ही स्मॉल कैटायन है. ऐसा ना. So there is a large size difference between both of these. So in this case ये बताओ क्या आना चाहिए? Obviously क्या आएगा, that's a very different thing. क्या एक्चुअल में आएगा, क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा, that is a very different thing. But in general देखते हुए आप क्या बोलोगे बताओ? Soluble या insoluble? Correct. This should be soluble. Okay. This should be soluble. देखते हुए आप क्या बोलोगे? अच्छा ये चीज soluble होना चाहिए. Okay. So if there is a large size difference between cation and ion, it is generally soluble. जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मे बी LiF and LiI. ओके. हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं.
बताओ इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा आना चाहिए? करेक्ट, इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे LiI जो है वो ज्यादा सॉल्युबल आना चाहिए। हाँ, LiI ज्यादा सॉल्युबल आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि LiF में साइज डिफरेंस इज नॉट लार्ज, whereas LiI में साइज डिफरेंस इज मच लार्जर। यस और नो? यहाँ पे साइज डिफरेंस इज मच लार्जर, साइज डिफरेंस इज मच लार्जर, तो ये वाला पार्ट आपका टिपिकली सॉल्युबल आना चाहिए, ये वाला जो है आपका लेस सॉल्युबल आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, बट दिस इज समथिंग दैट वी आर गेसिंग। ओके, बिना एक्सपेरिमेंट के हम ये चीज वेरीफाई नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग दैट वी आर गेसिंग कि ऐसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आई थिंक वी विल स्टॉप राइट हियर। इसके आगे अगर मैं आपको करवाऊंगा तो आप कंफ्यूज ही होगे। ठीक है, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टॉप राइट हियर एंड वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, आई थिंक आपका वेडनेसडे को, आई थिंक आपका नेक्स्ट टाइम टेबल के हिसाब से आपका वेडनेसडे को डाउट सेशन होगा। सो आई विल बी सेंडिंग यू गैस स्टेट स्टेज ए स्टेज बी टुडे इटसेल्फ। राइट, एंड आपका जब वेडनेसडे को डाउट सेशन होगा वी विल डिस्कस गैसेस स्टेट DPP, we will discuss gas state stage A stage B, and अगर टाइम मिलता है we will discuss whatever personal doubts you may have. Is that clear? मोल का DPP, अच्छा मोल का DPP डिस्कशन नहीं हुआ क्या? मोल का DPP डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन पहले हम गैस स्टेट को खत्म कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स फिनिश गैसियस स्टेट। एक छोटा सा डाउट था, बोलो भाई क्या छोटा सा डाउट है? सो गैस स्टेट का DPP, गैस स्टेट का स्टेज ए स्टेज बी, एंड देन भी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। ओके, उसमें अभी टाइम है। आई डोंट थिंक अभी नेक्स्ट डाउट, दो डाउट सेशन तक तो उसका टाइम आएगा। कल का DRS लेक्चर, यस ऑफ कोर्स आई विल अपलोड। ओके, आई थिंक मैंने ड्राइव पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया था, आप एक बार चेक कर लो। नहीं कर कर दूंगा ऑब्वियसली। ओके, आज तो सैटरडे है ही, आज तो मैं वैसे भी सारे लेक्चर अपडेट कर दूंगा। राइट, लाइटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कैसे अफेक्ट करेगा? ओके, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम यही सॉल्युबिलिटी में कंटिन्यू करेंगे, जब हम यही सॉल्युबिलिटी में कंटिन्यू करेंगे विल डिस्कस हाइड्रेशन एनर्जी एंड लाइटिस एनर्जी। ओके, मैं आई विल एक्सप्लेन कि अच्छा ये साइज डिफरेंस वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास को छोड़। फ्लोरेट, फ्लोरेट डिपेंड करता है, फ्लोरेट कैन बी सॉल्युबल, फ्लोरेट कैन बी कैन आल्सो नॉट बी सॉल्युबल, डिपेंड करता है। ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है सॉल्युबल नहीं।